Hello students, how are you? In our previous class we started the complex permanent tissues and we discussed that those tissues which are made up by more than one type of cells, those tissues which are made up by more than one type of cells that are called complex permanent tissues, and we discussed the xylem. Xylem, that is a complex permanent tissue which conduct the water, and we discussed that there are four type of cells present in the xylem: xylem vessels, tracheids, parenchyma, xylem parenchyma, and xylem fiber. Okay, now in today's class let us start to discuss about the fluid. Okay, firstly the questions comes in our mind, that is, what is fluid? So it is also a conductive tissue. It is also a conductive complex permanent tissue. It is a conductive complex permanent tissue which which transport prepared food या organic food which transport or conduct organic food from the leaves to from the leaves to different plant parts, different plant parts. दिस कंडक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड फ्लूइड. ये जो कंडक्टिव टिश्यू है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लूइड. ओके, it is made up by the four type of cells. If we can consider its composition, then it is made up by four type of cells. There is four type of cells. First is sieve tubes. First one is sieve tubes. Okay, second one is companion cell. First one is sieve tubes and second is companion cell. Third one, that is xylem parenchyma, and fourth one is xylem fibers. Okay, so these are the four constituting cells of fluid. Out of these three, this is only dead cell. This is the only dead cells, while all of these three are living. That is also living, that is also living, and that is also living. So we can say that most of the phloem cells are living. If we compare with the xylem, then in the xylem there only one type of cell, that was xylem sorry, oh sorry for that, it is not xylem because we are discussing about the phloem. Sorry for that. In the case of the xylem, the only one cell, that is xylem parenchyma, was living, but and all the remaining three, that is xylem, tracheids, vessels, and fibers, that was dead cells. But here, this is only dead, and that is all of these are living cells. Got it? Understand? Now, let us discuss about the one by one. What is sieve tubes? If we consider the sieve tube, and this is the diagram which is showing all the four type of, here is the only we are showing the only first three type of cells. This is that cell, similarly that cell. These are called sieve tubes. These are called sieve tubes. If we consider the shape of that, if we consider the shape or composition of that, then these are tubular, tube like structure है इसलिए that is tubular living cells with perforated cell walls. Perforated यानी कि छेद, that is living है, elongated है, tubular है,
परफोर्टेड सेल वॉल्स। परफोर्टेड सेल वॉल्स पाई जाती हैं जिनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और होल्स के कारण से ये जो सेल वॉल है दिस इज लाइक ए प्लेट। जैसे अपन घर पर चावल वगैरह को, गीले चावल जो होती किचन में देखा होगा अपने मम्मी को, उनको जब ड्राई अप करती है, मतलब गीले चावल जो बॉइल्ड हैं उनको पानी निकालने के लिए एक प्लेट टाइप में जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें उनको डालती है तो पानी नीचे चला जाता है, बिल्कुल सिमिलर ये है। तो इसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड सीव प्लेट। तो सी प्लेट टाइप में यहाँ पर ये परपोर्टेड यानी कि होल होते हैं इसमें, ताकि वाटर का सॉरी जो फूड वगैरह है उसका कंडक्शन हो सके। वन थिंग लेट मी क्लियर यू, दीज आर लिविंग सेल्स बट दे आर एन्यूक्लिएटेड ऑल्सो। लिविंग सेल्स है लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। दैट मीन्स nucleus absent. If you memorize the chapter number 5th, then we discussed about that anucleated cells. That is a nucleated cell. Okay, so it is living and do not have nucleus. Okay, it conduct the food materials. ये जो फूड मटेरियल्स वो इसी सीव ट्यूब्स के थ्रू कंडक्ट होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ द एडजेसेंट, इसके बिल्कुल पास में ये जो सेल्स हैं, जैसे ये यहाँ पर एक और सीव ट्यूब्स है, ये एक है, तो इनके जो बिल्कुल पास में दैट वन, दीज आर कंपेनियन सेल्स। दीज आर कंपेनियन cells. These are also living cells. ये भी क्या है? Living cells हैं, which are attached with the sieve tubes. जो क्या रहती है? sieve tubes के साथ attached होती है। The nucleus of the companion cells control the functioning of sieve tubes. जो sieve tubes की जो सेल की भी functions हैं वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं जो उसके जस्ट बिल्कुल पास में जो कंपेनियन सेल्स हैं उन कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से। ओके, so we can say that the nucleus of the companion cell control or regulate the activities of phloem tissue, of sieve tubes. Okay, third, that is phloem parenchyma. This one, phloem parenchyma. It is also a living cell and just like a ordinary parenchyma, it mainly perform the function of storage. Okay, ये mainly perform क्या करता है? Storage को functions को perform करता है। Fourth one, that is phloem fibers. These are similar with the xylem fibers. Xylem fiber के जैसे ही हैं। These are dead cells and made up by sclerenchymatous. Sclerenchymatous cells, जो sclerenchyma टाइप की जो सेल्स हैं, sclerenchymatous cells, ये sclerenchyma जो है उनसे ये मिलकर बने होते हैं और इनकी वॉल्स के ऊपर जो इनकी सेल वॉल होती है, their cell wall is lignified. सेल वॉल कैसी होती है? दैट इज लिग्निफाइड। गॉट इट? अंडरस्टैंड? और इनका मेनली वर्क होता है गिव द मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, जो फाइबर है वो इन सभी को एक साथ बाइंड अप करके रखते हैं, इनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का वर्क करते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ these are the components and the functions of phloem. Okay, now अब जाइलम और फ्लोएम अपन ने थोड़ा कंसिडर किया है, तो यहाँ पर एक वर्ड है जो अपन ने पहले भी काम में लिया है, उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओनली 1 मिनट वी विल डिस्कस अबाउट दैट। द वर्ड वाज वैस्कुलर बंडल। स्टार्ट में भी इस चैप्टर में भी यूज किया था
or maybe possible in the lower classes you familiar with this word, vascular bundle. The question comes in our mind, what is vascular bundle? Xylem and phloem, they are collectively called vascular bundle. ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं. और वी कैन से दैट xylem and phloem together forms vascular bundle. Okay, these are related with the transportation because xylem जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, phloem फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो ये मेनली किसके साथ रिलेटेड है? इट इज मेनली रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन. इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये रिलेटेड होता है. ओके, तो ये एक वर्ड जो अपन देखते हैं. Now this is the completion of the, now here the plant tissues are completed. So now after that let me start about the animal tissues. Sorry, प्लांट टिश्यूज कंप्लीट होने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? एनिमल टिश्यूज. ओके, like the plant, animals also has different kind of tissues. जैसे plants में different kind of tissues थे, वैसे ही animals के अंदर भी different kind of tissues होते हैं. Okay, these different kind of tissues are located in the different places of the body. ये different places जो है body के अंदर उनमें located हैं and they perform different functions. Okay, if we connect collectively, if we consider then they are collectively, अगर अपन इनके functions को, structures को collectively consider करें, then they are grouped into 4 categories. तो इन्हें 4 categories के अंदर grouped किया जाता है, या अपन बोल सकते हैं on the basis of the structure and functions of multicellular animals they have 4 type of tissues. इनमें 4 type of tissues पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है that is epithelium. Epithelium या और epithelial tissue. This is the first one. Second, these are connective tissue. Third, muscular. Third one is muscular. And fourth, that is nervous. So these 4 type of tissues are found in animals. Okay, now let me start the first one, that is epithelium, और epithelium भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं हम that is epithelial epithelial tissue. Okay, the covering or protective tissues in animals body. Animals body में जो covering, these are covering or protective tissues. These are covering or protective tissues of animals body, of animals body. Animals body के जो covering और protective tissues जो हैं, these are called epithelium. वो क्या कहलाते हैं? epithelium. जैसे कि for our skin या जो कोई भी organ है, उसकी जो outermost layer है, उसकी जो outermost layer है, that is, नहीं क्या बोला जाएगा? epithelium बोलते हैं. Got it? It covers most of the body organs and cavities. जो हमारे बॉडी के जो मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स हैं और जो कैविटीज हैं, जैसे कि माउथ कैविटी, तो उसके अंदर वाली जो स्किन है वो, या फूड पाइप, या पूरा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, या ब्लड वेसल्स, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जितने भी हैं इन सभी को ये कवर करती है. क्या करती हैं? उनको कवर करती है. जैसे स्किन, माउथ लाइनिंग और ब्लड वेसल्स, एल्वली, किडनी, डक्ट एटसेट्रा, ये सब किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियम की बनी हुई होती है. In epithelium, the cells
आर क्लोजली पैक्ड। जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल टाइटली या क्लोजली, टाइटली वर्ड यूज कर लेते हैं वो ज्यादा सही रहेगा। दीज आर टाइटली पैक्ड without any without any intercellular space and make a sheet। क्या बनाती है? शीट बनाती है, मतलब एक लेयर टाइप में ये प्रेजेंट होती है। they have only, since they do not have any space, they have only small amount of cementing material। cementing material जो उन सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, तो स्मॉल अमाउंट में वो सीमेंटिंग मटेरियल जरूर इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, बाकी इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस अब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है। गॉट इट? दीज एपिथेलियम कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विथ एनवायरमेंट और आवर बॉडी एंड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर। ये जो एपिथेलियम टिश्यू है या एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये हमारी बॉडी का एनवायरमेंट और हमारी बॉडी के बीच में जो एक्सचेंज है उसको, या हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है उसको ये कंट्रोल करने का वर्क करता है। गॉट इट? इसके अलावा ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट आउट करने का भी वर्क करता है, बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक ए बाउंड्री लाइन। ये क्या एक तरीके से बाउंड्री लाइन है। गॉट इट? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन there are different kind of epithelium। हमारी बॉडी में different kind of epitheliums होती हैं या epithelial tissues पाए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस, अगर अपन सिंपल इसके वर्ड मीनिंग की अपन बात करें, स्क्वेमस इसका मीन्स होता है स्केल ऑफ स्किन। स्क्वेमस मीन्स क्या है? दैट इज स्केल ऑफ स्किन, जैसे हमारे स्किन के जो टुकड़े हैं उस तरीके से। ओके, इफ वी कंसिडर देन इट इज एज द नेम इंडिकेटिंग, इट इज मेड अप बाय ओनली वन लेयर। इट इज मेड अप बाय ओनली वन लेयर या सिंगल लेयर, ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। ये केवल एक ही लेयर का बना होता है। किसका बना होगा? एक ही लेयर के बनी होती है। जितने भी अपन पढ़ेंगे उन सभी में एक छोटा सा पॉइंट है, पहले उसको बता देता हूं। जितने भी अपन एपिथेलियम टिश्यूज पढ़ेंगे उन सभी में एक कॉमन होता है, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो सभी टाइप के एपिथेलियम के बेस पर होती है, और उसके ऊपर जो सेल्स है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज की, वो उसके ऊपर अरेंज्ड होती है। तो ये एक सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी टिश्यूज में मिलेगी। राइट? तो यहां पर अगर अपन इसकी बात करें तो इन दिस सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज द वन लेयर ऑफ द cells is present ये हो गया अपना, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स फ्लैट टाइप की, फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स ये यहां पर प्रेजेंट होती है। ओनली वन लेयर ऑफ स्क्वेमस, ओनली वन लेयर ऑफ स्क्वेमस जो टिश्यूज है एक्सट्रीमली फ्लैट और थिन जो सेल्स हैं, दीज आर फ्लैट एंड थिन सेल्स, वो यहां पर प्रेजेंट होती है। तो अपन बोल सकते हैं इट इज द सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। क्या है ये? सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम है
जिसके अंदर which is made up by which is made up by the simple squamous which are squamous cells which are extremely thin, जो कैसे होती है, extremely thin होती है. Because of the very thin nature it is permeable in nature. कैसा होता है ये, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि मटेरियल्स का इसके इजीली इसके थ्रू एक्सचेंज हो सकता है. इसीलिए हमारी बॉडी में जहां जहां मटेरियल का एक्सचेंज होना है उन सभी लोकेशंस पर या उन सभी पार्ट्स के अंदर स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज आर प्रेजेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे कि ब्लड वेसल्स, जो हमारा ब्लड है, इससे ब्लड जो है हमारे टिश्यूज के अंदर ट्रांसफर होता है, तो वहां पर एक्सचेंज है, वहां से जो वेस्ट मटेरियल्स है, गैसेज है, वो रिसीव करता है, तो वहां पर क्या मिलती है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू. तो सबसे पहला जो कहां मिलेगी, द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है वो सब किसकी बनती है, वॉल्स भी बोल सकते हैं या लाइनिंग, लाइनिंग या वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, वो सब किसकी बनी होती है, दैट इज सिंपल स्क्वैमस टिश्यू. सेकेंड, दैट इज लंग्स एल्वोलाई. जो लंग्स के अंदर जो एल्वोली प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर जो एल्वोली जो प्रेजेंट है, एल्वोली जो प्रेजेंट है वो भी किसकी बनी होती है, OLI है, ये गलत है. If possible the spelling is wrong, so sorry in advance. एल्वोली जो है, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, हमारी बॉडी लंग्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जो गैसेस अपन इनटेक करते हैं वो इसके थ्रू एक्सचेंज रहती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस इनटेक कर ली जाती है, ब्लड के अंदर मिक्स करके ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, और जो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है वो इन एल्वोलीज के अंदर, लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द लंग्स, दीज आर कॉल्ड एल्वोली. तो वहां पर गैसों का जो एक्सचेंज होता है, तो ये जो लाइनिंग है, दैट वन, दिस लाइनिंग मेड अप बाय सिंपल स्क्वैमस टिश्यू. ओके, इसी तरह से ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, esophagus and small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये जो पूरा, दैट इज ईसोफेगस, फूड पाइप जिसको अपन बोलते हैं, एंड स्टमक के अंदर, दीज आर द प्लेस वेयर द फूड इज एब्जॉर्ब्ड. ये वो जगह है जहां पर फूड क्या किया जाता है, फूड है, वाटर, उन सबको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब. तो वहां पर भी कौन सी पाई जाती है, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ताकि वो फूड वगैरह को इजीली एब्जॉर्ब कर सके. इसी तरह से डाइजेशन सिस्टम में अपन बात करें, माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है, दैट इज, इट इज ऑल्सो मेड अप बाय सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज. गॉट इट. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी की जहां पर सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज अपन देखते हैं. गॉट इट. फर्स्ट वन, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. आपको ये पर्टिकुलरली जैसे 1, 2 या कोई भी और अपन पढ़ेंगे तो उनमें कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है, पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ टिश्यूज, किस टाइप के टिश्यूज से ये बनी हुई है. तो हमें पता होना चाहिए किससे बनी की है. जैसे ये एग्जाम्पल किसके हैं, दे आर मेड अप बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ये सब किसके बने हुए हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं. गॉट इट. So this one, first, simple squamous tissues. Now, second, second one is stratified. Stratified squamous epithelium tissues.
Yes, stratified squamous epithelium. Okay, here again these are squamous epithelium but stratified, that means many layers. It means क्या हो गया, many layers of squamous टिश्यू सेल्स या स्क्वेमस टाइप की जो सेल्स हैं उनकी बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्या रहेगा यहाँ पर, इट हैज मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपन इसको डायग्रामेटिकली अपन इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, सो सपोज इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तो आ गई अपनी कौन सी, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर यहां पर बहुत सारी लेयर्स हों, नाउ दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दीज आर, ये जो अपन बना रहे हैं दीज आर द लेयर्स ऑफ स्क्वेमस सेल्स। जब बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं तो उसके लिए वर्ड क्या काम मिलेंगे अपन, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। क्या बोला जाएगा इसे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल लैंग्वेज अपन बोल सकते हैं द एपिथेलियम इन विच एपिथेलियल सेल्स, स्क्वेमस सेल्स या जिसको अपन पर्टिकुलर बोल सकते हैं एपिथेलियम है, तो दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, या सिंपली अपन बोल सकते हैं एपिथेलियल सेल्स। ओके, स्क्वेमस तो इसकी शेप हो गई ना, फ्लैट टाइप की है तो स्क्वेमस, बाकी एक्चुअल में क्या है, दीज आर एपिथेलियल सेल्स। सो द लेयर्स ऑफ द epithelium in which the epithelial cells are arranged in the many layers, that is called stratified। इसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन, that is called stratified squamous epithelium। क्या बोला जाएगा इसको, stratified squamous epithelium बोलते हैं। Got it? Understand? It is present, जो हम इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दैट इज स्किन। स्किन जो है वो सब किसकी बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ओके, इफ वी कंसीडर इट्स फंक्शनिंग देन इट प्रिवेंट फ्रॉम द वियरिंग एंड टियरिंग। जो हमारी स्किन की जो वियरिंग और टियरिंग है यानी कि फट जाना, उससे प्रिवेंट करने का वर्क करती है। एंड ऑल्सो इट रेगुलेट द, या और वी कैन से दैट प्रिवेंट फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, any bacterial or any type of virus through the skin। जो हमारे स्किन के थ्रू जो मटेरियल जा सकते हैं उनसे इसको प्रिवेंट करने का फंक्शन ये परफॉर्म करती है। Got it? So that is the stratified squamous epithelium। Got it? So स्किन जो है वो सब किसकी बनी हुई है, stratified squamous epithelium की। The next is cuboidal squamous epithelium। As the name indicating, these cells आर क्यूब इन शेप। ये जो सेल्स हैं ये किसकी बनती होती हैं, इट इज मेड अप बाय क्यूब टाइप शेप्ड या क्यूब शेप्ड सेल्स। जो क्यूब शेप्ड सेल्स हैं उनकी बनी हुई होती है। बट इट इज फॉर्म्स, इफ वी कंसिडर इट्स लोकेशन, देन इट इज फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी। जो किडनी की जो लाइनिंग है यानी कि वॉल्स जो हैं वो बनाती हैं। इसके अलावा डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, वो भी किसके बनते हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय क्यूबॉइडल। ओके, दीज आर, if we consider the main function, then it gives, if we consider the main function, then we can say that it gives मैकेनिकल सपोर्ट। क्या काम करती है ये, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू दैट ऑर्गन। जो भी ऑर्गन है उसको ये सपोर्ट देने का काम करती है। इफ वी कंसिडर अ डायग्राम, देन देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड हियर
These are cuboidal. These are cuboidal cells. Tube shaped epithelial cells से constitute होता है. Got it? About the two more types, that is columnar, and fifth one, that is glandular. We will discuss in next class. Okay, hope you like. Thank you.